Hello and welcome. This is Brian Anthony Thomas reporting from Hooghly, Bengal for NewsX. It is, there is a lot of warmth, there is a lot of heat wave also going on, but we are giving you all exclusive stories. Right now also, for the last phases, we were from Bengal, we are from Karnataka, and now I have come to Hooghly to, give you the pulse and to give the build-up of the phase 5 that's going to take place tomorrow. A big battle between the both TMC and the BJP. And we also are joined by two very eminent personality, two very guests who will give our perspective about the issues, the voter turnout, what is the reason, the Sandesh Khali issue, and many more to talk about Bengal. Yes, Bengal is known for its culture, its high-end culture, where you come, you're graced by rich culture, rich food, but again when the election season comes, you see there's a lot of violence taking place. You see the other states, it goes peacefully, but when you come to Bengal, you see there's a lot of issues, there's a lot of violence that takes place also. So to answer all these questions, we are joined by two very eminent personalities. One is Alok Sarkar and Dr. Manjusha Sarkar. First, we will go to Dr. Manjusha Sarkar to understand. Ma'am, very welcome to NewsX. Ma'am, मेरा पहला सवाल ये रहेगा कि फर्स्ट 4 फेजेस में वोटर टर्नआउट काफ़ी कम हुआ है. बंगाल में भी कम हुआ है. बंगाल में 70% था और अगर हम पूरे इंडिया की बात करें वहाँ भी वोटर टर्नआउट काफ़ी कम था. आपके हिसाब से क्या कारण था, क्या रीज़न था या क्या इशू था जिसकी वजह से वोटर टर्नआउट काफ़ी कम था? अच्छा, मेरे अनुसार मुझे ऐसा लगता है कि जो वोटर्स हैं, मतदाता जो हैं, वो मोदी जी के मीन्स जो रूलिंग पार्टी है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट में जो पार्टी अभी काम कर रही है, तो उनके कामों को देख के वो बहुत ही सेटिस्फाइड है. तो बहुत से मतदाता इन चीज़ों को सोच के बैठे हुए हैं कि शायद उनके बेसिस पे ही हम निकल जाएंगे. तो हमको ऐसा लगता है कि शायद इसी कारण परसेंटेज ऑफ वोटिंग इज लेस देन 60 और 70%. तो आपके हिसाब से हीट वेव या गर्मी कारण है या यही एक प्रोबेबल रीजन है जो अभी आपने हमारे व्यूअर्स को बताया? एक्चुअली एनवायरमेंटल कंडीशन इज नॉट द फैक्टर. हाँ, वो एक कुछ परसेंट वो भी रिस्पॉन्सिबल रीजन हो सकता है, बट हमारे ख्याल से देखिए, यदि मतदाताओं की इच्छा रही तो वो वैसे भी यदि जितना भी हीट वेव्स रहे या रेन वेव्स रहे वो जरूर जाएंगे. पर अब मतदाताओं की माने मेंटालिटी को भी समझना थोड़ा बहुत मुश्किल ही है कि क्या कारण हो सकता है. पर हमें जो लग रहा है कि हो सकता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के कार्य प्रणाली या उसके सक्सेस को देख के भी बहुत से लोगों में ये आत्मविश्वास आ गया है. जो परसेंटेज ऑफ वोट पड़ रहे हैं उन्हीं के बेसिस पे ही पड़ रहे हैं. ये मेरा मत है. We'll also be talking to Alok Sarkar and we'll get a perspective about to go more depth in these very issues. Sir, Sandesh Khali was a very prominent and a big issue that happened. Do you think it will be, the Sandesh Khali issue rather will be a game changer for BJP in Bengal? No, it may not be a game changer, but it will be one of the very major issue for the election. It's a very major issue for the BJP. It's a very important issue. There is no doubt about it. So according to you, why do you think it has become such a major issue? It become a national issue. Like we see violence hota rehta hai. Violence takes place. Bengal is known for a violence. But this very issue that has happened, it became a national issue. It came to Delhi also. The Prime Minister himself took a keen interest in that as well. So according to you, why do you think it became such a big deal? देखिए, एक बाकी जो स्टेट है और बंगाल में देखा जाए, बंगाल में मातृशक्ति का एक अलग महत्व है, बहुत इंपॉर्टेंस है. और संदेश खाली में जो हुआ, ये मातृशक्ति के ऊपर एक बहुत बड़ा मतलब घात आया है. तो ये बंगालीज को जो जनरल मेंटेलिटी है वो इसको मैच नहीं कर सकता. यहाँ पे माँ काली का रूप होती है महिलाएं, तो जहाँ इनके ऊपर कोई घटना होता है तो उसका बहुत दूसरा जो असर है उसका इम्पैक्ट बहुत दूर तक जाता है. तो इसीलिए ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर हो गया है. दूसरी जगह में होता नहीं पता कि ये कितना होता, लेकिन बंगाल में इसका इफेक्ट बहुत इम्पोर्टेंट है. सर, आपसे भी जानने की कोशिश करेंगे. काफ़ी एक बिग बैटल होने वाला है कल, बैनर्जी वर्सेस चैटर्जी. रचना बैनर्जी जो एक स्टार कैंडिडेट है और लोकेट चैटर्जी पहले एमपी रह चुकी है. आपके हिसाब से क्या ग्राउंड लेवल में टफ कंपटीशन होने वाला है और आपके हिसाब से
होने वाला है, ऑन ग्राउंड क्या कंपटीशन रहने वाला है और कल आपके हिसाब से क्या होने वाला है? देखिए, मैं तो एक बात बोल सकता हूँ कि लॉकेट चैटर्जी हम जीतेगा। इसका रीज़न क्यों है कि फाइटर हमेशा जीतता है। पूरा 5 साल में वो फाइट किया है लोगों के लिए। जिधर कुछ भी हुआ वो सीधा चला ही है। तो जो फाइट करता है तो फाइटर तो हमेशा ही जीतेगा। Sir, I'll also, he has said about fighting. I'll also want to take a perspective from you. Like again, talking about it's Chatterjee versus Banerjee. Locket Chatterjee was an MP, and Rachna Banerjee is a star candidate. She was is a star rather. Now, according to you, what issues you see here that have been solved under her rule, or what issues do you think needs to be rectified or needs to be solved? देखिए, मैं हिंदी में ही बोल रहा हूँ कि यहाँ जो इश्यूज हैं, मतलब ये पर्टिकुलर ये जो हुगली लोकसभा केंद्र है, यहाँ पे एक्चुअली बनर्जी और चैटर्जी की फाइट है ही नहीं। क्योंकि लॉकेट चैटर्जी जो है वो सिर्फ सांसद ही नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट या जनरल सेक्रेटरी रही है। तो और 5 साल से उन्होंने राजनीति के लिए बहुत कुछ काम किए हैं और भारतीय जनता पार्टी को यहाँ जो प्रभाव आज देख रहे हैं, ये प्रभाव के पीछे उसका पूरा योगदान था। उस हिसाब से मैडम रचना चैटर्जी जो है वो काफी कमजोर हो गई है आज के दिन में, और ये खुद वो मान भी रही। स्टार पावर काम आएगा या नहीं आएगा? नहीं, स्टार पावर यहाँ स्टार पावर नहीं है। ये देखिए, बंगाल में क्या है ना, पॉलिटिकली लोग बहुत मैच्योर्ड है, पर्टिकुलर हुगली रीजन में तो बहुत मैच्योर्ड है। तो इसलिए लोग को मालूम है कि कौन काम कर रही है, कौन काम कर सकती है। क्योंकि देखिए, लॉकेट चैटर्जी में एक है, वो पिछले इलेक्शन जीतने के बाद वो पूरा अपना जो मतलब जो पॉलिटिक्स में ही उन्होंने अपने पूरे को झोंक दिए थे। उत्तराखंड की उन्होंने ऑब्जर्वर बनी और यहाँ का स्टेट का जनरल सेक्रेटरी के रूप में काम किए। लगातार वो राजनीति में रही है। वो ऐसा नहीं है कि जीतने के बाद वो नाटक में चली गई या फिल्म में चली गई या बाहर घूम रही है। इट इज नॉट लाइक दैट। तो ये सबसे प्लस पॉइंट उनके लिए है, और इतने दिन यहाँ पे रहने के कारण हर जगह में उनका बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहे हैं। तो इस हिसाब से हमें लगता है जो ये जो फाइट है, ये फाइट के हिसाब से क्या काम हुआ है अगर हम ये लोकसभा सीट का बात करें हुगली में? देखिए, काम जो हुआ है ये तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से हुआ है। जहाँ जिन लोगों को मकान नहीं था उन लोगों को मकान मिला, जहाँ रोड नहीं था वहाँ रोड मिला, जिन लोगों को अकाउंट नहीं था उनको अकाउंट मिला है। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो प्रोडक्शन की इंडिया की जो उस प्लानिंग में भरपूर काम हुआ है, तो और इसमें उनका भी योगदान भरपूर है। तो इस हिसाब से कहीं काम नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ऐसा विचार कम से कम इस लोकसभा केंद्र में तो नहीं है। मैम, आपसे भी जानने की कोशिश करेंगे। वी अगेन, लाइक आई सेड ऑल्सो टू ऑल द व्यूअर्स दैट बंगाल इज नोन फॉर its rich culture, its rich food, but when it comes to election, we see there's a lot of violence also happening. You see other states, there's not much violence, but you come to Bengal, you see there's bomb being hurled, there UPC people, their hospitals, there are no beds also, they keep their hospital beds also vacant for patients to come. Even earlier also we were reporting from Behrampur where there were cars being vandalized, reporters being, their cars has been vandalized as well. Ma'am, आपके हिसाब से बंगाल में ही वायलेंस क्यों हो रहा है? क्योंकि वी नो दैट बंगाल में काफ़ी पीस लविंग पीपल है, रिच कल्चर है, खाने में काफ़ी रिच फूड है, पर इलेक्शन के समय ऐसा क्या हो जाता है कि ये पूरा हेड टेल्स हो जाता है और वायलेंस पे इतना आगे आ जाता है बंगाल? देखिए, मेरे कि बंगाल में अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि यहाँ पे इंडस्ट्रीज वगैरह पूरी तरीके से क्लोज्ड हैं। एजुकेशन सिस्टम भी जैसा होना चाहिए उस हिसाब से उसमें भी कोई डेवलपमेंट नहीं है। भले ही NEP 2020 इम्प्लीमेंट हो चुकी है, उसके बावजूद भी स्टूडेंट्स जो ग्रुप है या यूथ जो है अभी भी अनएम्प्लॉयमेंट है। तो ड्यूरिंग द इलेक्शन पीरियड ऑल दिस पार्टीज, not only ruling party, all the parties are use that youth for their jobs. एंड इन दैट पर्पस उस समय क्या होता है कि उस यूथ में यूथ को पार्टीज अपने अनुसार यूज करने लगती है तब, तो उसमें हर प्रकार के कामों से वो क्या हो जाती है, माने उस यूथ को हर प्रकार के कामों के लिए वो बाध्य कर देती है या कंपेल कर देती है कि यू डू दिस वन। तो इसी कारण से वायलेंस में वृद्धि हो जाती है, बढ़ती है वायलेंस। आपने जैसे अभी बोला कि मुर्शिदाबाद या फिर दूसरे जो
यहाँ के डिस्ट्रिक्ट है, नॉट ओनली मुर्शिदाबाद, संदेशखाली आप देख रहे हैं, है ना। तो ये सब जगह पे कारण हमें जो लगता है एक सबसे बड़ा कारण है यूथ को मिसयूज करना फॉर द इलेक्शन पर्पस। You are a woman yourself and Sandesh Khali has become a major issue. तो ये बंगाल में अगर हम बात करें विमेन एम्पावरमेंट या विमेन सेफ्टी पे फोकस है? देखिए, यदि विमेन सेफ्टी पे फोकस रहता तो संदेशखाली जैसी घटना यहाँ पे नहीं घटती। यदि विमेन पे फोकस रहता, हमारे राज्य की मुख्यमंत्री भी एक महिला ही है, पर यदि उनका फोकस रहता महिलाओं पे, हो सकता है वो बहुत से प्रोग्राम कर रही है, बहुत कुछ कर रही है, बट यदि उनका सिक्योरिटी पे फोकस रहता तो आज ये घटना, इतनी बड़ी घटना आज संदेशखाली में नहीं घटती, ऐसे हमें लगता है। आपके हिसाब से कैसे वी कैन बेटर इट? देखिए, बेटर होगा, परिवर्तन लाना बहुत जरूरी है। यदि परिवर्तन आता है तो बहुत कुछ हो सकता है हमारे इस राज्य में। सर, आपसे भी जानने का कोशिश करेंगे, इफ यू टॉक अबाउट द मोदी फैक्टर, हाउ इम्पोर्टेंट इज द मोदी फैक्टर for the voters to come out for voting? Do you see, for you, if you talk about Bengal or rather this seat, do you think that the voters see the Modi factor, the party or the issues that have been, and what do you think the voters जो मतदाता है उनके दिमाग में क्या चलता है when they come out to vote? देखिए, यहाँ तो फैक्टर सिर्फ मोदी जी ही है, इसमें तो कोई प्रश्न नहीं है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे विपक्ष में रहा है और विपक्ष में रह के कुछ खास सरकारी को सहयोग जो वो तो हम दे नहीं पाए। लेकिन यहाँ के लोग, बंगाल के लोग ने देखे हैं कि और सारा भारत में क्या स्थिति हुआ है, क्या मतलब डेवलपमेंट के किसे डेवलपमेंट कहते हैं और क्या डेवलपमेंट हुआ है। जबकि यहाँ हम उल्टा ही देखे हैं, यहाँ हम हर जगह पे देख रहे हैं कि हर विषय पे चोरी हुआ है। जहाँ आप खाद के मामले में देखें, खाद्य मंत्री आज पूरा जेल में है, जो शिक्षा मंत्री पूरा शिक्षा डिपार्टमेंट है जेल में है, स्वास्थ्य के मंत्री, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य मंत्री खुद है, ये इसलिए शायद वो बाहर है, नहीं तो अलग से कोई स्वास्थ्य मंत्री होता तो वो भी पूरा डिपार्टमेंट के साथ जेल में होता। तो ये जो अव्यवस्था है, ये अव्यवस्था यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है और यहाँ वोट केंद्र का हो रहा है। लेकिन यहाँ की जो स्थिति है, यहाँ को जो अपना जो स्टेट का सरकार है, इसके विरुद्ध ये पूरा वोट जा रहा है। तो नेचुरली एक और चीज मैं जानने की कोशिश करूंगा कि बीजेपी लगातार ये एलिगेशन देते रही है टीएमसी पे। एक तो महुआ मोइत्रो कैश फॉर क्वेरी केस हो गया, या संदेशखाली इशू हो गया, या आपका एसएससी स्कैम हो गया। कितना पिविटल या कितना सच है या कितना सीरियस है ये एलिगेशंस जो बीजेपी टीएमसी के ऊपर दे रहा है? दीज आर ऑल वेरी सीरियस इश्यूज, मतलब इसमें तो कोई प्रश्न नहीं है, क्योंकि जो भी डिसीजन हुआ है ये कोर्ट की तरफ से हुआ है। ये ऐसा कोई अलग से कार्रवाई नहीं है, जो कोर्ट कार्रवाई किया है और उसी के रिजल्ट आज मंत्री संतरी सब आज जेल में है। तो आम इंसान जो साधारण मानस है, इनको तो मालूम है, ये देख रहे हैं, हर रोज टीवी में देख रहे हैं, पेपर में देख रहे हैं, दिस इज फैक्ट। अब फैक्ट को तो कोई अस्वीकार नहीं कर सकता और फैक्ट जो फैक्ट है उसका इंपॉर्टेंस ऑलवेज अवेलेबल है। तो दिस इज द बेसिक रीजन, लोगों को मालूम है कि ये जो लोकल सरकार जो है, स्टेट गवर्नमेंट जो है, ये पूरा जो वोट है उनके विरुद्ध में जा रहा है। मैम, आपसे भी I'll try to gain a perspective. Now CAA has become a major thing in all over India. Now talking especially about Bengal, you see the TMC is fully against it. Even in the manifesto they have said that we are against the CAA, whereas the BJP is pro CAA. So according to you, do you think the CAA will play a major or a very impactful role in Bengal? देखिए, CAA, NRC, ये जो दो इश्यूज हैं इन वेस्ट बंगाल, ये हो सकता है हम जिस लोकसभा को बिलोंग करते हैं यहाँ पे इसका प्रभाव जितना ना पड़े, बट रिवर के उस साइड, आई मीन गंगा के इस पार और गंगा के उस पार ये NRC एंड CAA का बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा और ये जाएगा हमारे केंद्र सरकार के फेवर में ही जाएगा। जितना भी रूलिंग पार्टी जितना भी चिल्ला ले, जितना भी हमारी यहाँ की जो चीफ मिनिस्टर है जितना भी भाषण में अपनी बातें CAA के या NRC के अगेंस्ट बोले, बट ये जाने वाला है सेंट्रल गवर्नमेंट के फेवर में ही जाने वाला है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के फेवर की बात नहीं है, ये तो संविधान का ही एक आपका। अगर मैं बंगाल का बात करूं, बंगाल में मेजर रोल प्ले करेगा अभी? यस, 100% मेजर रोल प्ले करेगा NRC एंड CAA, इसमें कोई दो मत नहीं है। सर,
I'll also try to gain perspective. Now you see, central leadership is very keen in coming to Bengal. You see, the Prime Minister has also rallies tomorrow. Himanta Biswa Sarma is also coming to Bengal, and all big leaders, be it Amit Shah, Prime Minister himself, he has come so many times, and he's bringing all the big leaders to Bengal. So, do you see an impact this time happening around? Where even the Amit Shah also said that we are getting 35 seats now. So, do you see there's impact? इट वॉज वेरी एसेंशियल एज बिकॉज अब देखिए कि बंगाल में आने वाले दिन बंगाल की सरकार या बंगाल में बीजेपी का सरकार बनने जा रहा है तो Sure about it. इट इज 100% श्योर क्योंकि देखिए जब 3 से 72 जो होता है ना तो वो नेचुरली 72 से 150 तक तो जाना ही जाना है और ये ऐसे ट्रेडिशन बंगाल में रहा है तो सरकार बनने जा रहा है तो नेचुरली भाजपा के सभी लोग यहाँ पे आए और अपने जो कार्यकर्ता हैं उन तक पहुंचे उनको मोटिवेट करे और वही चीज जनता तक पहुंचे तो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू ऑन पार्टी टेक इट वेरी सीरियसली every chief ministers of every states and as well as the all ministers they are visit Calcutta and West Bengal various places so I'll also on this follow up like you said also. Now yes, central leadership is very keen. They're coming they're full out, they're coming to Bengal. Now you see on the other hand the TMC, Mamata Banerjee, Abhishek Banerjee, they are also going on full rallies, they're doing their full rallies and all. So on ground, if we talk about the PM and the CM, how big a competition do you see happening on the ground level, especially if we talk about Bengal? no there is no competition as because ममता जी की जो बात है ममता जी का जो क्रेज है वो ममता जी ने अपने आप में खत्म कर दिए हैं अरे अभी उनका तो लोग बाहर में है ही नहीं क्योंकि सभी मंत्री तो जेल में है जो जेल में नहीं है वो बेल में है तो जेल और बेल के चक्कर में ये पूरा सरकार जो ये बैठ चुके हैं और इनके जो कर्मी है जो पहले भी हमने देखे हैं 19 का इलेक्शन भी देखे हैं 14 में देखे जहां वहां ग्रूम होता था 100 200 500 लोग होते थे आज उनमें 20 25 50 लोग हो रहा है इसका मतलब उनकी जो शक्ति है वो शक्ति समाप्त हो गया है अब वो शक्ति सामने वाले की शक्ति अगर समाप्त हो जाता है तो नेचुरली जो दूसरे टीम है वो उनका शक्ति बढ़ जाएगा और यही स्थिति हो रही है आज उनकी शक्ति खत्म हो गई और भारतीय जनता पार्टी की शक्ति भी बढ़ रहा है और धीरे धीरे छा जा रहा है Ma'am, you stay here and you know a lot about this rather constituency. According to you, if I asked you in a very neutral, in a very narrow approach, what do you think are the issues that is there or that you feel is faced? I think the role of central government or the function of central government reaches us means जो हमारी जो पब्लिक को आज हम जो बाहर पे विदेश में अपने आप को एक इंडियन के हिसाब से गर्वित कर सकते हैं ये सबसे बड़ा एक कारण है सेंट्रल गवर्नमेंट का मैंने बिसाइड्स द ऑल अदर इश्यूज हाँ मैंने हम गर्व से कह सकते हैं कि हम भारतीय हैं जो विदेशों में ये बातें आज से 10 साल पहले हम इतने इससे नहीं कह पाते थे जो आज मोदी जी के कार्यकलापों या उनकी जो इच्छा शक्ति के कारण ही आज हम अपने आप को बहुत इससे कह सकते हैं हमारी जो पोजीशन है भारत से बाहर की जो पोजीशन है वो आज इन्हीं के कारण है तो ये एनआरसी सीएए या जो और भी इश्यूज हैं या वेस्ट बंगाल के जो इश्यूज हैं लाइक मे बी एसएससी स्कैम है और अदर जो इश्यूज हैं इन सबको यदि हम साइड में रखें तो सबसे बड़ा मुझे जो लगता है कि आज जो हमारा स्थान भारत के बाहर है वो है मोदी जी के कारण हम बहुत इससे कह पाते हैं कि हम भी भारतीय हैं हमारा स्थान बाहर की ओर यानी विदेशों में हमारा स्थान आज मोदी जी के कारण आज हम उस स्थान को ग्रहण कर पाए हैं So yes, viewers, this was a very important, a very intricate conversation that I had with these, personalities where they spoke their heart out rather about the issues, about the voter turnout, and tomorrow is going to be a big day, especially if I talk about Hooghly because the 5th phase is going to commence now. And we also from NewsX, we urge all the voters for the youth, for the first time voters, to the women voters to come out and vote, to cast your vote, to choose the person you want to vote because it is your right, it is your duty to choose the one so that you do not complain that, oh, you have not chosen the right one or something bad has happened. This is me, Brian Anthony Thomas, reporting from Hooghly for NewsX. Until next time.
For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.